کچھ مینو مرندہ شوق رسی۔ یہ حمزہ کہاں چلا گیا؟ آج تو سارا دن دکھائی نہیں دیا۔ وہ اس کی نظروں کے معنی خیزی سے گھبرا کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ لالا رخ نے اپنی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ روشی، میں طلال کا دامن خوشیوں سے مسرتوں سے بھر دینا چاہتی ہوں جس کا وہ حقدار ہے۔ روشانہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے کی دیوار کو خالی خالی نظروں سے تک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک کرب آ کر ٹھہر گیا۔ وہ بھی یہی چاہتے ہیں، شاید سبھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا دامن بھی خوشیوں سے بھر جائے۔ وہ اس کے مقابل سے اٹھ کر اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ لالا رخ نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا۔ لالی، مجھے بہت دکھ ہوا جب مجھے یہ خبر ہوئی کہ آپ کی ڈائیورس ہو چکی ہے۔ وہ رنج سے نظریں جھکا کر بولی۔ میں آپ کا دکھ کس طرح شیئر کر سکتی ہوں لالی، مجھے بتائیے۔ لالا رخ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ہولے سے تھپ تھپایا۔ ہر شخص کو اس کے مقدر کے دکھ اور سکھ ملتے ہیں پگلی، اس میں کسی کا دوش نہیں ہوتا۔ بس یہ جو اپنے ہوتے ہیں نا، یہ ہماری محبت میں ہمارے دکھوں کو کسی نہ کسی کے ساتھ تھوپنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی کو قصوروار ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ میں سیف الرحمن کو دوش نہیں دیتی، میرا اور اس کا ساتھ تھا ہی اتنا۔ جو جوڑے بنانے پر قادر ہے وہ ان کو توڑنے پر بھی قادر ہے، پھر ہم الزام کسی انسان پر کیوں رکھیں؟ بہت ظرف ہے آپ کا لالی، یا پھر یہ آپ کی محبت کی انتہا ہے۔ روشانہ نے رنج کی سی کیفیت سے اسے دیکھا۔ لالا رخ کو اپنے دل پر کھٹ سے کوئی وزنی شے لگتی محسوس ہوئی۔ اس کے سینے میں مانوس سی دکھن ہونے لگی۔ وہ پلکیں جھپک کر نگاہوں کا رخ پھیر کر ایک اذیت آمیز خیال میں ڈوب کر بولی، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، شاید یہ محبت کی انتہا ہی ہے کہ میں اسے آج تک برا نہیں کہہ سکی۔ سچ تو یہ ہے میں نے اس شخص سے سچی محبت کی، اس کو دل کی گہرائیوں سے چاہا، بلکہ محبت کے لمس سے آشنا ہی مجھے اس نے کیا۔ محبت صدیوں کا عمل نہیں ہے، یہ تو لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ عورت کو جو پہلی بار چھوتا ہے وہی اس کے اندر اس جذبے کے بیج بوتا ہے، اور جو پودا اگتا ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے درخت بن جاتا ہے۔ پھر اس درخت کی ساری چھاؤں وہ عورت بس اس مرد کے نام کر دیتی ہے۔ مگر لالی، نا قدر شناس مرد اس چھاؤں کو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ وہ بڑی دل گرفتگی کے ساتھ بولی، شاید پھر آپ نے ایسے مرد کو اپنی چھاؤں دی ہی کیوں؟ اسے پہلے آزما تو لیا ہوتا۔ اسے اپنا دل اس دکھ سے کٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ پگلی، مرد کی محبت کو آزمایا نہیں کرتے، ایسا کرنے لگیں تو یہ دنیا بہت بدحیت اور اپنی تمام تر بدصورتیوں سمیت عورت پر ظاہر ہو جائے، اس لیے کہ شاید ہی کوئی مرد کسی بھی رشتے میں 100% خالص ہوگا۔ یہ خالص پن صرف عورت کے حصے میں آیا ہے۔ عورت اپنے اس خالص پن سے مرد کی اس خامی کو چھپا لیتی ہے، تبھی ہمارے مشرقی دنیا میں ابھی تک آسودگی ہے۔ کیا وہ یہ اچھا نہیں کرتی؟ اس نے جیسے روشانہ سے تائید لی ہو، پھر اس کے رخسار پہ نرمی سے انگلی پھیرتی ہوئی محبت سے مسکرا دی۔ کیا آپ کو اب بھی سیف الرحمن سے محبت ہے؟ وہ اس کی اس ہنسی مسکراہٹ میں کچھ تلاش کرنے لگی، اور ادھر دروازے کے باہر مصطفیٰ خان کے قدم ٹھٹک گئے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اپنی ریسٹ واچ اٹھانے آیا تھا، مگر روشانہ کے اس سوال نے اسے باہر ہی گویا پتھر کا کر دیا۔ اس کا دل بڑے مختلف انداز میں دھڑکا، اس کی سماعتیں بھی بصارت کا روپ دھار گئیں، اور لالا رخ کا جواب سننے کو بےتاب ہوئیں۔ اندر کی مزمحل سی خاموشی کے یہ چند پل اسے قیامت جیسے لگنے لگے۔ اسے لگا جیسے اس لمحے اسے کسی نے جکڑ لیا ہو، اس کا بدن شیشے کی طرح اکڑ گیا ہو، بس ابھی ٹوٹا کہ ابھی ٹوٹا۔ وہ چند اعصاب شکن لمحات کے بعد لالا رخ کی آواز ابھری، محبت ہمیشہ نامکمل مگر بھرپور ہوتی ہے،
हाँ, कुछ लोगों ने बेशक एक दूसरे को धोखा देने का नाम भी मोहब्बत रखा हुआ है। इसके लहजे में एक ठहराव था, ऐसा ठहराव जो तूफान के गुजर जाने के बाद समंदर की सतह पर आ जाता है, मगर समंदर के सीने में जो रस्साकशी होती है इससे साहिल पे खड़ा शख्स वाकिफ नहीं होता। वो इस लम्हे बज़ाहिर ऐसी ही पुरसुकून सतह दिखाई दे रही थी। तो क्या सैफुर रहमान ने भी आपकी मोहब्बत के नाम पर सिर्फ धोखा दिया, बेवकूफ़ बनाया? पता नहीं। वो मेरी मोहब्बत को अपनी ही नज़र थी, मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। वो फीके से अंदाज में हंसती। मोहब्बत सैलाब की सूरत होती है, इसमें हमारी अना डूब जाती है, हम खुद भी डूब जाते हैं और यूं अगले की खैर ख्वाही या बदख्वाही को महसूस ही नहीं कर सकते। इसके दिल में झांकते भी हैं तो अपनी आंखों से देखते हैं। औरत मोहब्बत में शायद वसीउल क़ल्ब हो जाती है, जो कभी किसी की मामूली खामी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अपने महबूब की बड़ी से बड़ी खामी को नज़रअंदाज कर डालती है। कभी तो ऐसा इसके हक़ में अच्छा रहता है और कभी बहुत बुरा। वो बात करते करते माजी के धुंधलकों में गुम हो गई। रोशाना ने इसके कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली आमेज दबाव डाला तो वो चौंकी। फिर एक मुज़महिल सांस भरकर इसका हाथ अपने कंधे से हटाकर अपने दोनों हाथों पर दबाकर मुस्कुरा दी। रोशाना को उसके उदास चेहरे पर रख्ता होने वाली ये मुस्कुराहट अमावस की रात की मानंद दिखाई दी। मुस्तफ़ा खान अंदर आने का इरादा तर्क करके बेआवाज़ कदमों से वापस पलट गया। तुम्हें पता है कल तलाल की बर्थडे है? वो मौजू बदल कर बोली। उफ, फिर वही तलाल का जिक्र। रोशाना को जाने क्यों इस शख्स के जिक्र से अपने दिल पर एक इस्तराबी दबाव सा महसूस होने लगता था। क्या बात है, आज आपके सर पर तलाल भाई सवार हो गए हैं। मेरे सर पर तो खैर सवार रहता ही है, काश तुम्हारे सर पर भी सवार हो जाए। उन्होंने अचानक ही इसकी तरफ झुककर बराह रास्त इसकी आंखों में झांका। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया लाली? चलें लॉन में चलते हैं, वहीं है सब। वो यकलख्त सोफे से उठ गई तो लाला रुख ने इसकी कलाई पकड़ ली। ये बताओ, मेरा साथ दोगी? मैं तलाल को सरप्राइज देना चाहती हूँ, वह संजीदगी से कह रही थी। 3 साल से तलाल ने अपनी बर्थडे नहीं मनाई। मैं चाहती हूँ कि इससे इस बार मजबूर किया जाए। तो भला आपका मैं क्या साथ दे सकती हूँ इस मुहिम में? उसने हैरत से इस्तफसार किया। तुम? लाला रुख ने हल्के से मुस्कुराया और फिर पुरख्याल अंदाज में सर को खफीफ सी जंबिश देती सोफे से उठते हुए बोली, तुम कल मेरे साथ शॉपिंग पर चलना, हम उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदेंगे। कम से कम तुम मुझे आइडिया तो दे ही दोगी ना? हाँ खैर, इतना तो मैं दे ही देती हूँ। उसने दिल ही दिल में इत्मीनान का सा सांस लिया और सर हिलाया। अब चलिए, लॉन में सब मुंतजिर हैं आपके। वो उसे पकड़कर ले गई। मुस्तफ़ा खान के दिल की फिजा पर बेनाम सा सकूत तारी हो गया। मोहब्बत दरअसल सैलाब की सूरत है, इसमें हमारी अना डूब जाती है, हम खुद डूब जाते हैं। लाला रुख की नरम आवाज़ की बाज़गश रह रहकर इसके दिल की फिजा पर छाए सकूत में दरार डाल रही थी। पता नहीं पूरी फिजा में ही ऐसा सकूत छाया हुआ था या अपने अंदर ही सन्नाटा था। इसके दिल में बैक वक्त 2 तरह की ख्वाहिशात सर पटक रही थी। एक ये कि वो लाला रुख पर अपना दर्द अया कर दे, अपना इस्तराब खोल कर उसकी पनाह की तलब जाहिर कर दे। दूसरा ये कि इसका दर्द समेट ले, अपने और इसके माजी के इन तख्त बरसों को किसी आतिशदान में डालकर राख कर दे, फिर राख किसी दूर अफ्तादा मुकाम पर नदी नालों में बहा दे और हाल में इसके और अपने लिए खुशियां हासिल कर ले। छोटी छोटी ख्वाहिशात जब सर उठाती हैं तो आदमी को तिनके की तरह बहा कर ले जाती हैं, और मुस्तफ़ा खान जैसा आदमी खुद को इसी तिनके की मानंद कमज़ोर महसूस कर रहा था। वो खुद को उस बच्चे की तरह महसूस कर रहा था जो मनपसंद शय को पाने के लिए मचल रहा हो, मगर वो मनपसंद शय उससे छीनकर उसकी दस्तरस से दूर किसी ऊंची जगह पर रख दी गई हो, जैसे वो सिर्फ देख सकता हो, छू नहीं सकता हो। वो उठकर कुशादा बालकनी में टहलने लगा, फिर ग्रिल के बड़े बड़े दायरों से बाहर झांकने लगा।
यहाँ से बगली बागीचे का आखिरी हिस्सा दिखाई देता था, जिसके इख्तितामी हिस्से पर सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए थे। पानी की टैंक और मशीन भी गालिबन इसी हिस्से में थी। शब्बीर लॉन से सामान खींचता हुआ पिछले हिस्से को धोने की तैयारी कर रहा था। दीवार पर उसने अपना रेडियो रखा हुआ था, जिसमें कोई फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा था। शब्बीर खासा बाज़ौक़ मालूम होता था। वो गाने के बोल के साथ साथ खुद भी गुनगुना रहा था, मगर इसकी गुनगुनाहट उस मशीन से मुशाबा थी जो कचरा फंस जाने पर रुक रुक कर चल रही हो। वो उसे जिससे दिलचस्पी से काम करते देखते देखते इस गाने की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो शब्बीर के रेडियो पर सुनाई दे रहा था। हो तेरी याद का दिल में गुजर आहिस्ता आहिस्ता, करे ये चांद सहरा में सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, कि हम धोखे में रखें दोस्तों को खुश कलामी से, हमें आ ही गया है ये भी हुनर आहिस्ता आहिस्ता। उसे लगा उसका दिल इन बोलों से हम आहंग होकर धड़कने लगा हो। कहीं से एक वीरानी का साया फैलता आया, हुए बेरंग सब दरो दीवार आहिस्ता आहिस्ता, न टूटे और कुछ दिन तुझसे रिश्ता इस तरह मेरा, मुझे बर्बाद कर दे तू मगर आहिस्ता आहिस्ता। अल्फाज मौसम की तरह हमारे दिल की फिजा पर असरअंदाज होते हैं। कभी बारिश की बूंदों की तरह अजीब सी तरवाहट भर देते हैं, कभी तेज झोंकों की मानंद बुनियादों तक को हिला देते हैं, कभी खिज़ां बनकर सन्नाटा और हौलनाक वीरानी फैला देते हैं, तो कभी तपिश बनकर सब कुछ बहा ले जाते हैं, और कहीं ये खिज़ा का अख्तितामी मौसम बनकर दिल में उम्मीदों के नए दिए भी जलाते हैं। उम्मीद जो मिसले जुगनू है, जिस तरह जुगनू की रोशनी उसकी फितरत की आंच से खुद ब खुद फूटती है, इसी तरह उम्मीद भी दिल में खुद ब खुद पैदा होती है और अपनी मध्यम रोशनी से वो आगे बढ़ते हुए उकसाती है, रोशनी बनकर रास्तों को सुझाती है। अचानक खुर्रम पर उसकी निगाह गई। वो बालकनी के दरवाजे में किसी फ्रेम की तरह इस्तादा था। गालिबन खासी देर से खड़ा उसका जायजा ले रहा था। उसने यूं ही सर झुका के साथ उसे देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया। ये पुराने कर्ज ख्वाहों की तरह क्यों घूर रहे हो? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी तुम्हारा उधार खाया हो। उसका अंदाज सरासा शगुफ्ता था। खुर्रम का कहका बड़े बेसाख्ता निकला। कर्ज तो खैर आप पर बहुत निकलते हैं, आपकी बाज़ौक़ी से अभी हमने लुत्फ़ उठाया ही नहीं। आप तो गालिबन शब्बीर के ज़ौक़ से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। उसने बालकनी की ग्रिल के पास आकर बाहर झांका। मैं भी कहूँ कि इस हिस्से में ऐसा क्या हो सकता है भला, जहाँ आप मुस्तकिल 10 मिनट से एक ही ज़ाविये में से खड़े हुए हैं। उसकी बात पर मुस्तफ़ा खान ने एक हल्की सी सांस भरी। चलिए बाहर आइए, बड़ी अच्छी महफिल जमी है, बस आप ही की कमी है। खुर्रम ने कहते हुए उसकी तरफ रुख किया और ट्राउज़र की जेबों में हाथ फंसाकर उसको इस्तेहफामिया नज़रों से देखा। जी हाँ, सिर्फ आप ही की कमी, एक खुश लिबास, खुश गुफ्तार, खुशनुमा शख्स की कमी। अब के मुस्तफ़ा खान का कहका बड़ा बेसाख्ता था। वो खुर्रम के साथ कमरे से बाहर आया और आते हुए बोला, गोया तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का फ़न भी जानते हो। खैर, फ़न तो मैं और भी बहुत से जानता हूँ, मगर ये कम अज़ कम इस फ़न का मुजाहरा नहीं। सच्चाई थी जो मैंने बयान की। वो दोनों बातें करते हुए बगली बागीचे में आ गए, जहाँ बड़ी रौनक लगी थी। उसने तलाल और जाजिब की तरफ जाने से पहले रास्ते में आमना बेगम और राफिया बेगम को सलाम किया। जवाब बड़ी गर्मजोशी से और मुशफ़क़ाना अंदाज में दिया गया। शुक्र है तुमने इसे पर्दे से तो निकाला। जाजिब भाई ने मुस्तफ़ा खान को देखकर खुर्रम से कहा। जी हाँ, अब लोग अपने अपने ईमान संभाल लें। उसने कुर्सी खींचकर एक मुस्तफ़ा खान को पेश की और दूसरी अपने लिए उठाकर जाजिब और तलाल के दरमियान रखकर बैठ गया। सुना होगा आपने कि नकाब जो उठाया शबाब रंग लाया, ईमान डगमगाया। खुर्रम बाकायदा लय में गाने लगा। तुम ख्वामखा मुझे हरासा करने की कोशिश कर रहे हो। मेरा ख्याल है, बल्कि मशवरा है, कि ये गाना अगर इस तरफ मुँह करके गाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुस्तफ़ा खान ने बड़े इत्मीनान से एक धीमी मुस्कुराहट के साथ कदरे फासले पर बैठी ख़वातीन की तरफ इशारा किया, जिस पर खुर्रम ने बेसाख्ता ठंडी सांस भरी। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।
जादिब भाई जोर से हंसे। खैर अब ऐसी भी बात नहीं है, खुर्रम ने उन्हें टोका। ऐसी ही बात है, वो हनूज इसी अंदाज में हंसे। दरअसल तैफी, इस बेचारे को वहां से निकाल दिया गया है। इसने हमें छोड़कर खवातीन की महफिल को रौनक बख्शने की कोशिश की थी, मगर अफसोस के जी नहीं, मैं वहां समोसे लेने गया था। खुर्रम ने इसकी बात काटते हुए पुरजोर अंदाज में तरदीद की। चलो कोई बात नहीं, बकौल शायर मोहब्बतें वही बना, उसे पत्थर पड़े कमर, दयार इश्क जितने फैलांगी खुशी खुशी। मुस्तफ़ा खान ने इसके कांधे पर हाथ रखकर पुचकारा, फिर जादिब की तरफ देखकर आंख दबाई। वो तीनों हंसने लगे। क्या मतलब आप लोगों का? वो सटपटा गया। दिल का चोर उसे सरासीमिया कर गया। भाई हमें पता है खुर्रम मियां, तुम बड़े हो गए हो, मगर परवजह से पहले रोशाना का नंबर आता है और तुम्हें इंतजार के कठिन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। जादिब ने इसका कांधा दबाया और जैसे उसकी सांस सीने में अटक कर रह गई। यूं तश्ते अज़बाम हो जाने पे वो बुरी तरह सटपटाया, फिर खिसिया कर खांसने लगा और एक गहरी सी सांस भरते हुए अपने एतमाद को संभालता हुआ बोला, वैसे रोशाना का ऐसा बड़ा मसला भी नहीं है, उसे आप निपटा सकते हैं अगर चाहें तो। उसने ये हमला बराह रास्त तलाल पर किया था। जादिब भाई बेसाख्ता हंस पड़े, मगर खुर्रम की इस बात पर तलाल के चेहरे के जावियों में यकलख्त खिंचाव आ गया। उसके लबों पर रख्ता मुस्कुराहट यूं गुम हो गई जैसे किसी नगमा साज का गला दबा दिया गया हो। उसने बरहमी के साथ खुर्रम को देखा। तुम जानते हो मैं मजाक में भी इस तरह की गुफ्तगू पसंद नहीं करता, और जादिब तुमने कम अज कम इस तरह की बेहूदगियों में साथ मत दिया करो इसका। वो जादिब की हंसी पर कुछ और भी बरहम हो गया। इससे पहले कि वो मजीद अपनी गर्मी दिखाता, कमाल चचा इस तरफ आते दिखाई दिए। साथ ही आदिल भी चाय की ट्रे पकड़े चला आ रहा था और यूं ये बात यहीं खत्म हो गई। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिनकी जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते हुए मुस्तफ़ा खान ने यूं ही झुकी नजरों से रोशाना के साथ आती लाला रुख के स्याह चादर के हाले में मुक़िद चेहरे को देखा। फिर अपने ही जज्बों की शिद्दत से घबरा कर नजरों का जाविया बदल लिया। ये खुर्रम कहाँ चला गया? मुस्तफ़ा खान को वो खुर्रम की गाड़ी के पास देखकर परेशान हो गई। खुर्रम को जल्दी थी, उसे अपने किसी काम के सिलसिले में जाना था। आप लोगों को शॉपिंग सेंटर ही ड्रॉप करना है, तो मेरा ख्याल है ये ऐसा मुश्किल काम भी नहीं जो मैं अंजाम न दे सकूं। वो खुश दिली से मुस्कुराया और एक गहरी सांस यूं खींची गोया ताज़ा हवा को फेफड़ों में उतार रहा हो। आइए प्लीज बैठ जाइए। वो ड्राइविंग सीट संभालते हुए इन्हें तजब्बुब में मुब्तला देखकर मतानत से बोला, क्या हर्ज है लाली, हमें शॉपिंग पर ही तो जाना है, ये ड्रॉप कर देंगे तो क्या हो जाएगा। रोशाना दबी ज़बान में बोली। लाला रुख को खुर्रम की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर गुस्सा अच्छा खासा आ रहा था। इन दोनों के बैठते ही गाड़ी पोर्च की चमकती सतह से फिसलती सड़क पर आकर दौड़ने लगी। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। गाड़ी की खामोश फिजा में यकलख्त गूंजने वाले गाने ने लाला रुख को कॉन्शियस सा कर दिया। उसने बेसाख्ता सामने देखा। व्यू मिरर पर उठने वाली निगाहों ने भी इसी लम्हे को गिरफ्त में लिया और निगाहों का ये तसादुम बड़ा बेसाख्ता और पुरमायने था। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न चले। प्लीज़ म्यूज़िक बंद कर दीजिए, मेरी आदत नहीं है रास्ते में म्यूज़िक सुनने की। वो नज़रों का जाविया बदल कर खिड़की से बाहर देखने लगी। आई एम सॉरी, दरअसल मैं तन्हा होता हूँ तो हल्का म्यूजिक जरूर सुनता हूँ। उसने व्यू मिरर से इसका चेहरे बागौर नजर देखा और टेप बंद कर दिया। और शायद आप भूल गए कि आप गाड़ी में इस वक्त तन्हा नहीं हैं, रोशाना एक मुस्कुराहट के साथ बोली। उसने शायद लाला रुख के चेहरे पर फैलने वाली गैर मामूली संजीदगी को देखा ही नहीं। हाँ शायद, यूं भी तन्हाई का एहसास आपके अपने अंदर से उठता है। उसने पीछे आने वाली गाड़ी को रास्ता दिया।
गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर ली। बसा औकात इंसान हजूम में भी तन्हा होता है और कभी अकेले में भी तन्हा नहीं होता। किसी का ख्याल हमें तन्हा होने नहीं देता। लाला रुख ने गैर इरादी तौर पर चेहरे का जरा सा रुख मोड़कर उसकी पुश्त को देखा, फिर एक इस्तराब रूह में उतरता महसूस करते हुए तेजी से पीछे भागते साइन बोर्ड को तकने लगी। आप तो अच्छे खासे फलसफी मालूम होते हैं, जबकि खुर्रम बता रहा था आप डॉक्टर हैं। रोशाना ने हैरत के इजहार के तौर पर कहते हुए उसे गौर से देखा। जवाबन वो बड़े दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराया था, मगर उसकी चमकती आंखों ने इस मुस्कुराहट का साथ नहीं दिया। वो बड़ी खामोशी से महसूस हो रही थी। तालीम तो मैंने मेडिकल की ही हासिल की है और ख़ानदानी तौर पर ज़मींदार हूँ, जबकि कारोबारी हिसाब से एक्सपोर्टर हूँ। हाँ, क़ल्बी और ज़हनी तौर पर आप मुझे थोड़ा सा झक्की किस्म का फ़लसफ़ी कह सकती हैं। उसकी इस वजाहत और लफ्ज़ झक्की पर रोशाना को बेसाख्ता हंसी आ गई। लाला रुख के लबों पर भी धीमी सी मुस्कुराहट बिखरी, मगर जल्द ही मादूम हो गई। जबकि मुस्तफ़ा खान का ध्यान तो था ही उस तरफ, उसे लगा जैसे एक पल के लिए रंग छलके थे, फूल महके थे, चांद ने बादल के अंदर से झांका था और जैसे कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुरा उठा था। आप तो खासे दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं। इनके बताए हुए शॉपिंग सेंटर के पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी तो रोशाना ने उतरते हुए कहा, ये तारीफ है या तंज? वो डैशबोर्ड से अपने गिलासेस उठाते हुए बोला। क्या मतलब? वो ठटकी, फिर हल्के से हंसी। ये खालिस्तान तारीफ है। क्यों लाली, मैंने कुछ गलत कहा है? उसने लाला रुख से तायद चाही। चलें, इस तारीफ पर आपका शुक्रिया, मगर मैं खुद को दिलचस्प आदमी कहलवाने पर कतन खुश नहीं होता। हाँ, अगर किसी और खिताब से नवाजती तो शायद मैं आपका मशकूर होता। मसलन? लाला रुख ने बेसाख्ता पूछ लिया। इसके लबों की तराश में हल्की सी मुस्कुराहट उमड़ी। वो अपनी सीट पर बैठे बैठे इसकी सिमत घूमा। मजनू, उसने बड़े एतमाद के साथ इसके चेहरे पर अपनी निगाहें जमा कर कहा, और इधर लाला रुख को कम से कम ऐसे किसी जवाब की तवक्को नहीं थी। वो सटपटाकर पलकें झपक कर निगाहों का जाविया बदल गई। उसका सारा एतमाद एक पल को फिजा में धुएं के गौल की मानिंद तहलील हो गया। रोशाना मुस्तफ़ा खान के चेहरे को देखते हुए बुरी तरह चौंकी थी। शायद यही वो पल था जब वो अपनी खूबसूरत आंखों से अपने दिल का राज अफशा कर रहा था और खुद आया हो गया था। नहीं, लाला रुख ने महसूस किया था। यह नज़रअंदाज करते हुए आगे चलने लगी, मगर उसकी ये गैर मामूली संजीदगी और बेगाना अंदाज रोशाना को ठटका गया था। लाला जैसी हसास औरत भला निगाहों के रंग कैसे ना पहचानती, जो किसी वजाहत के मोहताज नहीं होते। ये तो आसमान पे फैलने वाले कौसो क़ज़ा की तरह अपनी तरफ तवज्जो खींच लेते हैं। थैंक यू मुस्तफ़ा भाई। वो अपनी तरफ का दरवाज़ा बंद करके मुरव्वतन शुक्रिया अदा करने लगी। नो मेंशन। उसने सर को तफहीमी जंबिश दी और गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। लाली, कम से कम शुक्रिया तो अदा कर देना चाहिए था ना। वो भाग कर लाला रुख तक पहुंची, जो एक बुटीक में दाखिल हो रही थी। तुमने ये फ़र्ज अदा तो कर दिया है, और क्या चाहती हो? वो आहिस्ता से बोली। हाँ खैर, वो सर हिलाकर बोली। फिर बुटीक का गिलास डोर धकेल कर अंदर दाखिल होते हुए बोली, आदमी अच्छा मालूम होता है। ये कहते हुए उसने दीदा नज़रों से लाला रुख को देखा। हाँ, ज़ाहिरी तौर पर तो लगता है। वो बेतासुर अंदाज में बोली। खैर, मैं शक्ल की बात नहीं कर रही। वो जाने क्यों गैर इरादी तौर पर मुस्तफ़ा खान का जिक्र ले बैठी थी। बातनी तौर पे तुम किसी के बारे में इस तरह राय कैसे कायम कर सकती हो? चाहे जाएगा तुम उससे सिर्फ 1 या 2 बार ही मिली हो, और वो भी सरसरी। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में सर को झटक कर हंसती तो वो भी हंस पड़ी। फिर सर हिलाते हुए बोली, कुछ लोग प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत उतरते हैं, मगर कुछ लोगों का ज़ाहिर और बातिन एक मुख्तसर सी मुलाकात में ही वाज़ेह हो जाता है। मुस्तफ़ा खान भी इन्हीं लोगों में से है। ये कहते हुए उसने बेइरादा लाला रुख की तरफ बगौर देखा। उसे एक पल के लिए इसके चेहरे पर तगय्युर रोनमा होता नजर आया। इस शख्स का इस वक्त जिक्र क्या मायने रखता है? तुम्हें याद है हम तलाल का बर्थडे वाला गिफ्ट लेने आए हैं, या कि इस शख्स के जाहिर और बातिन पर तबसरा करने? वो कुछ झंझुलाई।
روشانہ بے ساختہ کھل پڑی۔ میرا خیال ہے اگر میں طلال کی تعریف کرتی تو آپ یقیناً شوق سے سنتی، ہے نا؟ آف کورس، اس میں کوئی شک نہیں۔ لالا رخ کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ہو سکتا ہے تمہارے منہ سے طلال کی تعریف سن کر میں خوشی سے بے ہوش بھی ہو جاتی۔ یہ کہتے ہوئے اس سے معنیخیز تبسم کے ساتھ اس کے چہرے کو ہلکے سے چھوا اور روشانہ کو لگا وہ اس کے دل کے تاروں کو ہولے سے چھو گئی۔ اس سے مانوس موسیقی بکھرنے لگی ہے، مگر اس نے بدقت خود کو اس کیفے سے نکال لیا اور اطراف میں سجے ڈریسز کو دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے ہم اپنی شاپنگ بعد میں کریں، پہلے طلال کے لیے کوئی گفٹ لے لیں، کیا خیال ہے؟ لالا رخ نے کہا تو اس نے خوش دلی سے سر ہلا دیا۔ کوئی گھنٹہ بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد لالا رخ نے طلال کے لیے گفٹ پیک کرایا اور بڑا سا کیک خریدا اور باہر نکلتے ہوئے گل فروش سے ایک بوکے لیا اور پھر دونوں قریبی خوشنما ریسٹورنٹ میں چلی آئیں۔ تم بیٹھو، میں آتی ہوں، لالا رخ کیفے کے کاؤنٹر کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ یہاں کیوں آئی ہیں آپ؟ طلال کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور کاؤنٹر پر جا کر طلال کو موبائل فون کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد طلال کی آواز آئی تو لالا رخ اسے کیفے کا نام بتا کر یہاں بلانے لگی۔ جلدی پہنچو، ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ اوہ خرم کا نہیں، تمہارا آنا ضروری ہے۔ ہسپتال سے آدھے گھنٹے کے لیے ہی نکل آؤ، آ جاؤ۔ مجھے پتا ہے تم اس وقت بالکل فارغ ہو اور یہ لنچ ٹائم ہے۔ پلیز طلال بی سیریس۔ اوہ تم آؤ تو تمہیں مسئلہ بھی بتا دوں گی۔ وہ ساتھ وضاحت بھی مانگ رہا تھا مگر لالا رخ نے جلدی سے لائن ڈسکنیکٹ کر دی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک کنارے والی ٹیبل پر بیٹھ گئی اور ویٹر کو بلا کر اسے کیک پکڑا دیا اور ساتھ ہی کچھ ہدایات دیں۔ پھر مینیو لکھوایا اور روشانہ اس سارے وقت میں وحشت کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ویٹر کے جانے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں پتا ہے روشی، میں بہت سال پہلے ایسی ہی تھی، سب کو حیران کر دینے والی، اس طرح کی حرکتیں کرنے والی، اور طلال کو سب سے زیادہ تنگ کرتی تھی میں۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد میں اپنے ماضی کی لالا رخ کو اپنے اندر سے کھینچ کر باہر نکال لائی ہوں۔ اس نے کرسی کی پشت سے لگ کر آنکھیں بند کر لیں، گویا ماضی کے خواب آور ساعتوں سے لطف اٹھانے لگی ہوں۔ مگر لالی، ہو سکتا ہے وہ اس بات کو پسند نہ کریں۔ آپ نے انہیں جس انداز سے بلایا ہے وہ برا مان جائیں گے، روشانہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ اس کے تصور میں طلال کا سنجیدہ اور لیے دیا سراپا میں لہرا گیا۔ کیا اسے برا ماننا چاہیے؟ وہ آنکھیں کھول کر جواباً بولی، پھر ہنسی، ڈونٹ وری، وہ مائنڈ نہیں کرے گا، میں خوش ہوں نا، اور وہ بھی یقیناً خوش ہوگا، اور پھر ہم کوئی ایسی انہونی تو نہیں کر رہے، اس کو سرپرائز ہی تو دے رہے ہیں، ہے نا؟ اور روشانہ اس کے چہرے پر کھیلتی مسکراہٹ اور خوشی کی اس چمک کو دیکھ کر مسکرائی۔ کوئی 15 منٹ کے بعد طلال انہیں کیفے میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ سفید شلوار سوٹ میں ملبوس، پاؤں میں لیدر کی سیاہ چپل، ہاتھ میں گاڑی کی چین۔ لالا رخ کو اطمینان سے کرسی پہ بیٹھے دیکھ کر وہ ٹھٹکا اور قدر مشکوک انداز میں اسے گھورنے لگا۔ لالی، کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ پرس اگر چوری ہو گیا ہے تو کیفے میں آنے کی کیا ضرورت تھی، سیدھی گھر چلی جاتی رکشا میں بیٹھ کر۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا۔ روشانہ کے لبوں سے نکلنے والی مدھم جھنکار سی ہنسی نے اسے چونکایا مگر وہ بے ساختہ امٹ آنے والی ہنسی کو جلدی سے دبا کر سر جھکا گئی۔ لالی، ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے لالا رخ کا از سر نو جائزہ لیا۔ معاملہ کیا ہے؟ اس کے چہرے پہ پھیلی سنجیدگی کچھ اور گہری ہو گئی۔ وہ وہاں بیٹھ تو گیا مگر اس کے انداز میں جھنجھلاہٹ اور ناگواریت تھی۔ لالا رخ نے اسے جواب دینے کے بجائے اسی لڑکے کو اشارہ کیا تو وہ اس کا آرڈر کیا ہوا مینیو جلدی جلدی ٹیبل پر سجانے لگا، پھر ایک ٹرے میں بڑا سا کیک لا کر درمیان میں رکھ دیا۔ آج تمہاری برتھ ڈے ہے جسے میں اور روشی تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، گو کہ یہ کیک ہونا تو تمہاری طرف سے چاہیے تھا اور گفٹ ہماری طرف سے، مگر خیر چلو، یہ بھی میری طرف سے گفٹ سمجھ لو۔ لالا رخ نے ماچس اٹھانی چاہی تو طلال نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کڑے تیوروں میں اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو میں اس طرح کی باتیں اور حرکتیں پسند نہیں کرتا ہوں، اس کے باوجود تم نے کرتے نہیں تھے مگر اب کرنے لگے ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور ساتھ ہی ماچس بھی اٹھائی اور موم بتی کو شعلہ دکھایا اور پھر بکے اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ روشانہ کی طرف سے اور یہ میری طرف سے۔ اس نے اپنا پیک کیا ہوا گفٹ اس کے آگے رکھ دیا۔
मगर तलाल ने इन चीज़ों पे सिर्फ गुस्सीली निगाह डाली और फिर गुस्से के आलम में इसने केक पर जलने वाली मोमबत्ती खींचकर फर्श पर फेंक दी। मोमबत्ती का शोला उसकी मजबूत हथेली के दबाव से ही बुझ गया था और वो लहराती हुई दूर जा गिरी। मुझे ज़रा सा भी एहसास हो जाता कि तुम इन फजूलियात के लिए मुझे यहाँ बुला रही हो तो मैं हरगिज़ नहीं आता। उसने उचटती निगाह रोशाना पर डाली और तंज आमेज अंदाज में बोला, मेरा ख्याल है तुम दोनों मिलकर गायबाना मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर लो। वो कुर्सी धकेल कर उठा और पलट कर बड़े बड़े डग भरता कैफे के दाखिली दरवाजे से बाहर निकल गया। लाला रुख दुख और सदमे से अपनी जगह गूंग सी बैठी रह गई। इस नौबत का तो रोशाना ने भी तसव्वुर नहीं किया था। वो मुरव्वतन भी बहन के दिल का पास नहीं करेगा, कम अज कम उसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। उसने रंज और खफत के मुश्तरका एहसास से गुजरते हुए लाला रुख की तरफ दुख से देखा और उसे लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबा दिया हो। उसका रंज गुस्से में बदलने लगा। उसे तलाल पर इतना शदीद गुस्सा आया कि अगर वो इस लम्हे इसके सामने होता तो वो उसे ज़रूर शूट कर देती, नहीं तो ये केक उठाकर उसके सर पे जोर से मार देती। चलें लाली, उठिए, घर चलते हैं। वो एकदम कुर्सी धकेल कर खड़ी हो गई। लाला रुख ने उसकी तरफ देखा। एहसास तजलील और गुस्से से उसका चेहरा यूं सुर्ख हो रहा था गोया अभी खून छलक पड़ेगा। लाला रुख बादिल्ला ख्वास्ता खामोशी से उठ गई। लाला रुख के मना करने के बावजूद उसने केक और दूसरी चीज़ें पैक करवाई और उन्हें लेकर निकल आई। वो ऐसा नहीं था कभी, मगर अब हो गया है। लाला रुख कमज़ोर लहजे में उसकी तरफ से सफाई देने लगी। वो तसम्मुख़ुर से हंसी, आप हमेशा दूसरों को अपनी निगाहों से देखती हैं और मुसीबत यह है कि आपके पास मोहब्बत भरी ही निगाहें हैं। रोशी, मेरी वजह से तुम भी हर्ट हुई हो ना? उसने उसका हाथ पकड़कर नदामत से कहा तो वो लम्भीच कर रह गई। फिर गुस्से के उबाल को दबाते हुए बोली, हाँ हुई हूँ, मगर अपने लिए नहीं, आपके लिए। मुझे अपनी नहीं आपकी फिक्र है। ये कहकर उसने करीब से गुजरते रक्शे को हाथ से रोक लिया। वापसी का रास्ता बेहद खामोशी से कटा। घर आकर लाला रुख अपने कमरे में बंद हो गई। बहुत कुछ चाहने के बावजूद वो रोशाना से कुछ न कह सकी। अजीब सा दर्द था जो उसे गुमसुम कर गया था, जबकि रोशाना अपने अंदर भड़कते अलाव को ठंडा करने के लिए टेरेस में चली आई। उसने वहीं से पोर्च में झांका। तलाल की गाड़ी मौजूद नहीं थी। इसका मतलब था वो अस्पताल चला गया था और वो उसकी वापसी का इंतजार करने लगी। आज उसने लाला रुख को जिस तरह बिखरते हुए देखा था वो उसके दिल को लहू कर गया था। तलाल के रवैये ने आग सी लगा दी थी। उसे इस शख्स के सारे रवैये याद आ रहे थे। हिना के मुंह पर लगने वाला तमाचा भी वो अभी तक अपने दिल पर महसूस कर रही थी। वो ऐसा नहीं था, मगर अब ऐसा हो गया है। लाला रुख बार बार यही कहती रहती थी, मगर वो किसी तरह मानने को तैयार न थी। और क्यों कर होती? उसका ख्याल था जो इंसान अपनी कैफियत पर काबू नहीं रख सके, मौजूदा हालात में खुद को ना ढाल सके, वो इंसान नहीं होता। चूँकि इंसान की जिबलत में तो कुदरत ने एक लचक रखी है। ये लचक उसके अंदर से निकल जाए तो इंसान हैवान के दर्जे पर दाखिल हो जाता है। वो शाम तक अंगारों पर लौटती रही। ढलती शाम को जब सबसे पहले उसकी गाड़ी पोर्च में आकर रुकी थी, वो खिलाफ मामूल जल्दी आ गया था, तो उसने शुक्र किया और खुर्रम और आदिल मुस्तफ़ा खान के हमरा बाहर जा चुके थे। वो किचन में चाय बना रही थी, तब वो ढीले ढाले कदमों से लॉबी से गुजरकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मामूल के मुताबिक उसने राफिया बेगम को सलाम किया। आज वो लॉबी में भी नहीं जाकर बैठा और चाय का आर्डर देकर सीधा अपने कमरे में चला गया।